Assalamu alaikum. Today we will now start with a totally different type of bipolar junction transistors. In the last few lectures, about 5 or 6 lectures, we had been mostly talking about the bipolar junction transistor as a current device as well as amplifier circuit design. What we are going to discuss today is yet a totally different aspect of the flow of current, which depends not only on the field that we create. If you remember that in the bipolar junction transistor we had created field between emitter base junction by forward biasing the first loop, the first node of the transistor, but here we create a field between the so-called source and drain. And in contrast also to the bipolar junction transistor, here the current flows only by one type of carrier, and that is why these devices are also known as unipolar devices. We shall discuss all that in great detail in today's lecture. But let me first give you an idea what we are going to talk about in this lecture. So I have listed, I've given you a list of the contents of the topic that comprise lecture 27. Of course, as is normal, the first part is the introduction to this lecture, what field effect transistors are, and today's lecture is about metal oxide semiconductor field effect transistor. In a minute I shall explain the detail of the terms that I have used in the topic of my lecture. And then of course, because the structure, MOS structure, is quite different from the bipolar junction transistor, so we will discuss about the structure of metal oxide semiconductor transistors as well. And then the most important topic, the third topic that we will discuss in today's lecture, is the qualitative treatment of the operation of a MOSFET. Why qualitative? Because we shall discuss various applied voltages in the transistor, and then accordingly we will follow how the current is flowing in the transistor in response to the applied voltages, that is in response to the field that we create in the semiconductor material. This is only a qualitative aspect. The quantitative, that is the current voltage characteristic, we shall discuss in our next lecture. So this is a simple breakdown, the outline of the lecture that we are going to have today. Now, as is the custom in my lecture series, that I like to give the original reference from where I prepare my slides, and I have retained the original figure number for your convenience, because it's a courtesy that I give the original reference number from where I have borrowed the figures for the preparation of my lecture. Of course, I shall sometime refer to my own slide numbers as well, where I have made slide modification to the figures. And of course, this is also important to mention that even though I'm utilizing the figures of this current reference, but sometime depending on the presentation that I'm giving here, I have modified them slightly. तो चूँकि फील्ड इफेक्ट की टर्म यूटिलाइज होगी बार बार मेरे आज के लेक्चर में, तो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू वी मीन बाय फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. आज के लेक्चर से पहले हमने 5 या 6 लेक्चर्स दिए थे, डिस्कस किए थे ऑन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, के जहां हमने 2 डिस्टिंक्ट डायोड्स में डिफरेंशिएट किया था. द फर्स्ट डायोड वाज बिटवीन इमिटर एंड बेस, एंड द सेकंड डायोड वाज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर. इमिटर बेस डायोड में हम फॉरवर्ड इमिटर बेस डायोड को करते हैं, और बेस कलेक्टर डायोड को हमने रिवर्स बायस किया था. और आपको ये भी याद होगा कि मैंने हमेशा NPN ट्रांजिस्टर की एग्जांपल ली थी. इन द इमिटर रीजन देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ द N type material, that is the majority charge carriers in the emitter region were the electrons. And the reason for doing so was, as will be clear in today's lecture as well, कि हम N type emitter इसलिए लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है as compared to hole mobility.
So utilizing an NPN transistor, the first junction which is between emitter and base, which was forward bias. तो हमारे emitter से electron diffuse होते हैं under the influence of the forward biasing into the base region. Base region हमारा P type था. इसी तरह बेस रीजन जहां मेजॉरिटी होल्स की है वो डिफ्यूज करते हैं अंडर फॉरवर्ड बायस इनटू द इमिटर रीजन. तो आपने ये देखा होगा कि इमिटर बेस जंक्शन में यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में both carriers, that is electrons from emitter, diffuse into the base region and holes from base region diffuse into the emitter region. तो कंक्लूजन ये था कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोनों द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स पार्टिसिपेट इन द करंट फ्लो मैकेनिज्म. उसी मुनासबत से हमने टर्म यूज़ की द बाइपोलर ट्रांजिस्टर. यहाँ हम एक डिफरेंट मैकेनिज्म करंट फ्लो का इस्तेमाल करेंगे इन द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स. That is, here the currents are flowing due to the voltages applied between two regions of the transistor that we shall elaborate in today's lecture, because this is first of the series of the lectures on field effect transistor. So mechanism of the carrier flow is under the influence of a field that we create or that is generated by applying appropriate biases between two regions or between two electrodes of the transistor. The current could be flowing due to the electrons, therefore the field effect transistor will be called as N-channel field effect transistor. The current when flows due to the holes, the mobile hole charge carriers, then accordingly the device is known as the P-channel field effect transistor. P-channel because holes are flowing, N-channel because electrons are flowing. Field effect, that is the electrons obviously flow under the influence of an applied electric field. As I mentioned earlier, the applied field is by applying biases or voltages between two respective points that we shall discuss in detail just now. So junction field effect transistor is the most simple device to begin with, and then we have another category, another type, in which we also deposit an oxide layer between the so-called gate, and therefore it is called oxide on top of a semiconductor. Therefore it is called metal oxide semiconductor field effect transistor, and the abbreviation is MOSFET. Why metal? Because obviously we have to connect, we have to make contacts with the outside external circuit, so we deposit the metal on top of an semiconductor layer to make a metal electrode. And I shall also elaborate that in most modern MOSFET fabrication nowadays, a special type of silicon, polycrystalline silicon is used as an electrode for the gate material. And third type of category is the metal semiconductor, in which there is no oxide layer, so we have MESFET. So the junction field behavior or the mechanism of operation for junction field transistor and metal semiconductor field transistor is more or less all these three types of categories behave in a certain fashion, but there are some similarities which we shall discuss when we go into the detail of these individual types respectively. I am going to start with the middle type, which is metal oxide semiconductor FET to start with, and we will postpone the discussion for the junction field effect transistor, which I have listed on top, for later discussion. तो आज हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से शुरू करते हैं, एंड वी वुड हाईलाइट द स्ट्रक्चर कि ये कैसे आप इसको फैब्रिकेट करते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स द सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन माय टुडेज लेक्चर इज द ऑपरेशन. तो स्ट्रक्चर और ऑपरेशन MOS FETs का हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैंने तीन कैटेगरीज फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स की बताई हैं, FETs, JFETs, MOSFET एंड MESFET. तो इनकी सबसे पहले हम ये करते हैं कि
एक एक स्लाइड इनके बारे में बता देते हैं कि ये एक्चुअली किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है. So here is a very simple illustration of what JFETs are. J, obviously, if you recall, stands for the junction. कि दो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बीच में हमारे पास जंक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं बाय रिस्पेक्टिव डोपिंग, कि आप P से N टाइप की डोपिंग कर दें या N से P टाइप की डोपिंग कर दें. सो वी क्रिएट अ जंक्शन. यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना मुनासिब समझूंगी कि जंक्शन इस तरह भी क्रिएट हो सकता है सेम पोलैरिटी के बीच में. अगर आप मसलन N टाइप मटेरियल लें तो एक को हेवीली डोप कर दें और दूसरे को लाइटली डोप कर दें. सो डिफरेंट डोपिंग ऑफ द सेम N टाइप मटेरियल विल आल्सो क्रिएट अ जंक्शन. लेकिन फॉर कन्वीनियंस से हम जंक्शन बना रहे हैं टू डिफरेंट पोलैरिटी के मटेरियल्स में, मसलन N और P के दरमियान या P और N के दरमियान. तो अब आप देख रहे हैं कि ये सिंपल एक स्ट्रक्चर दिखाया है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का. जंक्शन by having junction between the substrate and the N channel. Substrate in this case would be a P type material. अब substrate के ऊपर हम ग्रो करते हैं एक N मटेरियल की लेयर, एंड देन N मटेरियल की लेयर के ऊपर आप देखें कि दोबारा एक P लेयर है. सो इस तरह हम अगर वर्टिकल डायरेक्शन में जाएं फ्रॉम बॉटम टू अप, यू सी अ PNP transistor respectively, and we have a junction between substrate and the N channel, and then we have another second junction between N channel and P. लेकिन अब यहाँ ऑपरेशन बिटवीन इमिटर बेस और बेस कलेक्टर की तरह का नहीं है, यानी सबस्ट्रेट और N चैनल या N चैनल और P गेट में ट्रांजिशन नहीं हो रही इलेक्ट्रॉन्स की या कैरियर्स की. रादर द ट्रांजिशन इज फ्रॉम सोर्स टू द गेट एंड देन फ्रॉम गेट राइट अप टू द ड्रेन. और उसी मुनासबत से इनको लेबल किया जाता है. सोर्स स्टैंड्स फॉर वेयर द कैरियर्स ओरिजिनेट फ्रॉम, और ये वही नॉमेनक्लेचर है. अगर आपको याद हो, हमने जैसे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स में हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी इमिटर, बिकॉज दैट्स द रीजन जहाँ से कैरियर्स इमिट होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फॉरवर्ड बायस ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द जंक्शन. उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जिन कैरियर्स को आपने मूव कराना हो वो सोर्स से मूव करेंगे टूवर्ड्स द ड्रेन, एंड दैट इज what the terms stand for, that carriers originate from the source and the current is the carriers reach drain and then the current flows accordingly depending upon the polarity of the applied bias. तो सोर्स, गेट एंड ड्रेन की वोल्टेजेस को हम वेरी करते हैं, एंड बाय वेरिंग द वोल्टेजेस बिटवीन द गेट इलेक्ट्रोड जो यहाँ आपको सेंटर में नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, द करंट कैन बी मैनिपुलेटेड. सिमिलरली बाय अप्लाइंग ए सेकेंड बायस at the drain with respect to again source, currents can be manipulated. So gate voltages with respect to source, that is VGS, similarly the drain voltage VDS with respect to the source. ये दो important voltages हैं जो एक current को control करती हैं. So it's a kind of a voltage controlled current source, और ये एक field हम create कर रहे हैं gate voltage को देके and then drain voltages को देके हम एक field create कर रहे हैं between source and drain. Therefore, because of the applied biases, respective applied biases to the gate and then drain also, we create a potential difference between source to gate and then gate to drain, or from source gate to drain. एक आपका potential variation respectively arise हो रही है between the dimension of the between the length dimension of the transistor, और इस field के तहत potential variation की वजह से एक field generate हो रहा है, create हो रहा है, और उस field की वजह से आपके carriers जो कि इस केस में n electrons दिखाए हुए हैं, middle वाली channel आपकी middle की substrate और gate के बीच में आपको N channel N layer नजर आ रही है, N type semiconductor की layer नजर आ रही है. So electron under the influence of the field therefore would drift from source to drain, or depending upon the biasing of the drain with respect to the source,
इस मुनासिबत से हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ की एन चैनल, बिकॉज दिस इज़ द रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन्स flow in an n-channel field effect transistor, or where the holes flow under the influence of the electric field, applied electric field that is, and उस मुनासिबत से हम उस ट्रांजिस्टर को p टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। लेकिन मैंने आज के अपने लेक्चर में जैसा कि मैंने तमाम लेक्चर्स में किया है, n चैनल ट्रांजिस्टर्स को एग्जाम्पल लिया है, सिंपली बिकॉज the electrons have a higher excellent mobility as compared to flow of holes. So my lectures would be utilizing the n-channel transistors, n-channel field effect transistor. तो ये एक छोटी सी illustration थी field effect transistors की, junction field effect transistors की, and the gate and channel insulator is the depletion region itself. अब फील्ड इफेक्ट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स और मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसकी मैं अभी बात करूंगी, नुमाया फ़र्क ये है कि आपको नज़र आ रहा है कि मैंने एक गेट इलेक्ट्रोड आपको दिखाया हुआ है और उसके गेट इलेक्ट्रोड के नीचे आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल की लेयर नज़र आ रही है, एंड देन उसके नीचे हमने एक एन चैनल बनाया हुआ है। चैनल अराइजेस due to an applied electric field between source to gate and then respectively from gate to drain. तो जो चैनल बनी गेट के नीचे, जिसको मैंने लिखा है द गेट चैनल इंसुलेटर इज द डिप्लीशन रीजन इटसेल्फ। हमने बहुत डिटेल में पीएन डायोड या पीएन जंक्शन और उसके बाद ट्रांजिस्टर में भी इमिटर बेस जंक्शन ट्रांजिस्टर में और बेस कलेक्टर जंक्शन भी ट्रांजिस्टर में डिस्क्राइब किया था कि जब आप रिस्पेक्टिव पोलैरिटीज़ लगाते हैं, बाइसिंग करते हैं इमिटर बेस टर्मिनल को और इसी तरह बेस कलेक्टर टर्मिनल को, तो इक्विलिब्रियम में भी हमारे पास, यानी जब कोई बाइसेस ना लगी हों, डिप्लीशन लेयर मौजूद होती है, एंड देन वी कैन चेंज द विड्थ ऑफ दिस डिप्लीशन रीजन बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट बाइस। अगर फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाता है, अगर रिवर्स बाइस करते हैं किसी जंक्शन को तो डिप्लीशन रीजन वाइडर या लार्ज हो जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने जो कैपिटल लेटर्स में लिखी डिप्लीशन रीजन की, ये वही टर्मिनोलॉजी है। तो जब हम गेट और एन चैनल को रिस्पेक्टिवली बायस करते हैं तो इंसुलेटर यहाँ पे है वो डिप्लीशन रीजन है, और ये डिप्लीशन रीजन किस मटेरियल में क्रिएट हो रहा है? इस सेमीकंडक्टर एन और पी, जो आपको टॉप पे डायोड नजर आ रहा है एन एन पी डायोड, ये उस मटेरियल के अंदर डिप्लीशन रीजन क्रिएट हो रहा है। सो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जो हमने इंसुलेटर, जिस चीज को, जिस रीजन को हम इंसुलेटर कह रहे हैं, दैट्स द डिप्लीशन रीजन ऑफ द जंक्शन इटसेल्फ। इंसुलेटर के लफ्ज को मैं इसलिए एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि मेरा आज का टॉपिक है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इंसुलेटर के हवाले से मैं ये आपको कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो आवर फर्स्ट टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स आर द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, and the summary is that between the gate, which is the top contact of this particular in this particular slide, and the channel which is n channel, इसके बीच में जो insulator है, that is the depletion region itself of the semiconductor n channel and the p type gate material. अब ये दूसरा है जो कि आज के लेक्चर है हमारा सेकेंड टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, विच इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर आप लेफ्ट साइड की क्रॉस सेक्शनल व्यू को देखें तो सिलिकॉन सबस्ट्रेट है हमारे पास, फिर उसके ऊपर हम ग्रो करते हैं अनदर सिलिकॉन चैनल। अगर हम सबस्ट्रेट को फॉर एग्जांपल पी टाइप सबस्ट्रेट लें और उसके ऊपर अगर हम एन मटेरियल ग्रो करें तो दैट विल बी टर्म्ड एज पी सबस्ट्रेट एंड ऑन टॉप एन चैनल सिलिकॉन, और उसके ऊपर फिर आप देख रहे हैं कि एक हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर ग्रो की है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज़ अ वेरी गुड इंसुलेटर और वो आपके एक्ट कर रहा है बिटवीन एज एन इंसुलेटर लेयर बिटवीन द टॉप गेट, और गेट हमने एक किसी मेटल का हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमने सोर्स के ऊपर एक डिपॉजिट की है मेटल की लेयर, फिर हमने पी टाइप ऑक्साइड के ऊपर एक ग्रो की है, और
चैनल से ऊपर, हमारे एन टाइप चैनल से ऊपर हमने ऑक्साइड की लेयर ग्रो की है और फिर उसके ऊपर हमने मेटल कांटेक्ट लगाया है। सिमिलरली हमने ड्रेन के ऊपर भी एक मेटल कांटेक्ट लगाया है। सो दीज मेटल कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द सोर्स, द गेट and the drain respectively are utilized for connecting this field effect transistor in any given circuit that you desire. So this is a simple illustration of the structure of fabrication of metal, starting from the very top, the metal gate, and below the metal gate we have an oxide layer as is indicated very clearly in this slide, and then below that we have an N-type material, and this N-type material is grown on the P-type substrate in this slide. उसका दूसरा एक three-dimensional view मैंने right hand side पे illustrate किया है, but it's very easy to understand the structure. अब हम आते हैं कि यहाँ पे insulator layer क्या है between the gate and the N-type channel. So obviously between the gate channel and the N-type channel, the insulator is of course the silicon dioxide. तो dielectric, यहाँ पे insulator का dielectric जो है वो silicon dioxide है, जबकि पिछली ट्रांसपेरेंसी में, पिछली स्लाइड में आपने देखा कि इंसुलेटर सेमीकंडक्टर मटेरियल ही था, लेकिन वो डिप्लीशन रीजन, द इंसुलेटर इज द डिप्लीशन रीजन इटसेल्फ। इंसुलेटर का लफ्ज़ हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन में चूँकि कोई भी मोबाइल कैरियर्स नहीं होते, देयरफॉर इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर टू द फ्लो of the current because there are no mobile carriers. So dielectric would of course be that of the silicon material itself. यहाँ इस स्लाइड में डाइलेक्ट्रिक आपका ऑक्साइड लेयर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर which is grown between the N-type material जिसको हम N channel कह रहे हैं and between the gate electrode. तो ये अब आपका फाइनली थर्ड टाइप आ गई विच इज सिंपल मेटल सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर हम ऑक्साइड लेयर हमें नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल उसी तरह जैसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में ऑक्साइड की लेयर नहीं मौजूद थी, बट ऑफ कोर्स द मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन इज टोटली डिफरेंट फॉर MESFET एज कम्पेयर टू जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. Here the gate is formed by Schottky barrier to the semiconductor layer. The gate channel insulator consists of the depletion region, that is the same material as the channel, and it's very similar in construction, in fabrication to the junction field effect transistor. The fabrication technique more or less MES MESFET और JFET की more or less similar है, लेकिन the mechanism of current flow, that is the transistor operation, is similar to MOSFET. तो ये तीन in slight detail discuss करने के बाद then we move on to our formal lecture in the topic of today's lecture, which is metal oxide semiconductor transistor. Metal oxide semiconductor transistor is a term that we use for the fabrication, that is the structure of the transistor, and MOSFET field effect is the mechanism for the operation. तो अभी मैं एक और स्लाइड में ये इलस्ट्रेट करूंगी कि हम दो तरीके से, मैं दो डिफरेंट स्लाइड्स में आपको इस MOSFET की डेफिनेशन देती हूँ. इस करंट स्लाइड में देखिए, स्लाइड नंबर 8 में आई हैव यूज्ड द फर्स्ट 3 लेटर्स MOS for my transistor, definition of the transistor MOSFET. M stands for the metal gate, O stands for the oxide layer and S stands for the semiconductor. तो आप देखिए कि starting from left right or going from top to bottom or from left to right for this transistor fabrication. तो metal gate usually is made or is fabricated by using any kind of metal that is commonly utilized in semiconductor fabrication technology. It could be aluminium, but in the most modern fabrication technology, this metal gate is made of some unique material known as
crystalline material. तो मेटल गेट से नेक्स्ट या मेटल गेट के नीचे अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ आएँ, मेटल गेट के नीचे हमने एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट की हुई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर, एंड दैट सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर एक्ट्स एज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर. उसके नीचे फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल है. ये वही सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसमें आगे चल के हमने एक चैनल क्रिएट करनी है फॉर द फ्लो ऑफ द current, and in my lecture the current would be flowing due through the flow of the electrons itself. So in my N channel metal oxide semiconductor field effect transistor, the currents would be flowing due to the electron motion, due to the electrons in an N-type material. So if we start again from right, so N-type material, N semiconductor material is the material in which the carriers flow or move under the influence of an applied electric field, and hence give rise to a flow of current. The in-between material is an oxide layer, and then the top material is the metal gate material. We had also assumed that the work function of metal and semiconductors are more or less same, so that we don't get into any complication of the voltages when we apply a voltage between the metal electrode and the source electrode and the drain electrode. तो ये स्लाइड नंबर 8 में आपको एक बहुत स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन दिखाई है कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर लेयर्स आप किस तरह ग्रो करते हैं MOS ट्रांजिस्टर में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर में. तो ये एक उसकी बड़ी कलरफुल इलस्ट्रेशन है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की, कि बिल्कुल जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था. स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ दिस स्लाइड हमारे पास एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है. उसके सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर इफ यू मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप वी हैव इंसुलेटर लेयर, एंड देन ऑन द वेरी टॉप वी हैव अ मेटल गेट. अब इस चीज़ को मैंने एक फिनिश्ड डिवाइस के फॉर्म में दिखाया है कि आपके सबसे पहले एक सबस्ट्रेट है, एंड देन सबस्ट्रेट के ऊपर एक एन टाइप चैनल थी. ये एन टाइप चैनल वही है जो यहाँ सेमीकंडक्टर जिसको मैंने लिखा हुआ है, दिस इज़ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो मेरे नीचे इस स्लाइड में सबस्ट्रेट के ऊपर दिखाया हुआ है. इस एन टाइप चैनल में मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किए हुए हैं. वन इज़ लेबल्ड एज द सोर्स and the other is labeled as the drain, और इनको मैं रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव वोल्टेजेस देती हूँ. एंड देन मिडल ऑफ कोर्स इज द गेट इलेक्ट्रोड. तो आपके पास यहाँ 3 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं. आगे चल के मैं कहूँगी 4 हम इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं. एक सबस्ट्रेट या बॉडी के साथ एक इलेक्ट्रोड होगा. सेकेंड इलेक्ट्रोड विल बी कनेक्टेड एट द सोर्स. द थर्ड इलेक्ट्रोड वुड बी कनेक्टेड टू द गेट, and the fourth electrode would be connected at the drain. In normal operation of the metal oxide semiconductor transistors, we normally combine substrate with the source, so we are left with the 4 electrode reduced to 3 only, that is between the source S, the gate G, and the drain D. The operation consists of in manipulating the voltages between the operation consists in manipulating the voltages between gate and drain. Both the gate voltage and the drain voltage is defined with respect to the source. कि अगर हम सोर्स को ग्राउंड कर दें एंड सबस्ट्रेट एंड सोर्स आर कनेक्टेड, तो जो गेट को वोल्टेज देंगे दैट वुड बी एज द गेट टू सोर्स वोल्टेज. फिर इसी तरह जब हम एक ड्रेन को वोल्टेज देते हैं दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ VG. इस चीज़ को इस ऑपरेशन ऑफ द मॉसफेट को हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे. अभी इस वक्त इसके स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है. किसी सबस्ट्रेट पे आज के लेक्चर में ये सबस्ट्रेट ऑब्वियसली P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा. उसके ऊपर हमने ग्रो की है N टाइप लेयर,
n-type layer would be called as n-channel semiconductor material, और उस n-channel semiconductor material में हमने दो electrodes connect किए हुए हैं. One is labeled the source on the extreme left hand side, the other is called drain, which is on the right hand side of this slide, and in the middle we have connected a gate, metal gate, which is then labeled as gate electrode. तो ये तो आपका सिंपल स्ट्रक्चर था मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का. दिस कुड बी एन एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इट कुड बी अ पी चैनल ट्रांजिस्टर. इसीलिए मैंने यहाँ पी और एन टाइप नहीं लिखे. ये एक जर्नल डिस्क्रिप्शन है स्ट्रक्चर की, लेकिन मेरे लेक्चर में, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा, आई विल बी यूटिलाइजिंग एन एन चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. दिस इज a symbol for the field effect metal oxide field effect transistor. I have emphasized on the word oxide. तो इसीलिए आप देखेंगे गेट इलेक्ट्रोड के साथ जो एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, सिमिलरली आपको 3 सेपरेट वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं indicating the source and mid the body which is the substrate and top one D the drain. तो सोर्स एंड बेस एंड ड्रेन आपको 3 वर्टिकल लाइन नज़र आ रही हैं. इसी तरह आप गेट के साथ एक पैरेलल गेट के साथ एक वर्टिकल लाइन है और ये दोनों लाइंस आपको पैरेलल दिखाई गई हैं. वो एंड दे आर सेपरेटेड by some length. ये separation actually oxide layer है which forms an insulator between, जैसा पहले मैंने अभी इतनी डिटेल में बताया कि गेट और सोर्स एंड ड्रेन के बीच में हमारे एक ऑक्साइड लेयर है. दैट इज़ वाई सिंबल में हम इनको सेपरेटेड दिखाते हैं एंड द सेपरेशन इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ऑक्साइड लेयर. एंड दिस ऑल्सो, इसको पैरेलल इस फॉर्म में दिखाया है कि दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग चार्ज अक्यूमुलेशन या इन्वर्शन लेयर, जब हम गेट को वोल्टेज देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सबस्ट्रेट या बॉडी बी. तो ये 4 इलेक्ट्रोड्स के सिंबल मैंने आपको दिखाए हैं, जिनका मैंने शुरू में भी जिक्र किया था कि हम 4 इलेक्ट्रोड्स सेपरेटली डिफाइन कर देते हैं. और अगर हम बॉडी बी या सबस्ट्रेट को शॉर्ट कर दें सोर्स के साथ, देन वी शैल बी डीलिंग ओनली विद द 3 टर्मिनल्स, दैट इज द सोर्स and the gate and the drain. तो ये एक simple circuit symbol है और ये arrowhead indicates that it is an n-type material, that is electrons are flowing under the influence of the field that you create by applying appropriate biases to the gate terminal and to the drain terminal with respect to the third terminal which is source. तो अब हम ये कहते हैं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है इसके हेडिंग की टर्मिनोलॉजी को. इससे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, जैसे मैंने अभी बताया कि हम वोल्टेजेस अप्लाई करते हैं. लेट मी गो बैक अगेन. ये देखिए, अगर मैं सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, इफ आई अप्लाई अ गेट वोल्टेज to the gate, a positive voltage. Why positive? Because I have chosen the channel to be of n-type material, that is electrons. The mobile charge carriers in the channel are n-type electron. The electrons that it is an n-type, n-channel material, n-type semiconductor material. I have chosen to be the channel for my field effect transistor. If I apply a positive voltage to the gate with respect to the source, then and similarly if I apply a voltage V to the electrode D, तो ये voltages, 2 voltages, that is the gate voltage and the drain voltage, will generate an electric field between drain and source. With respect to the source, there will be a higher positive voltage to the drain. This field will then cause the electrons to move from source to drain. तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके इलेक्ट्रॉन की मोशन जो है वो कंट्रोल हो रही है. The electron motion, that is the current that is being generated
is directly proportional to the amount of the voltage that you apply to the drain. तो वही चीज़ आपको यहाँ मैंने दिखाई है कि इट्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस, hence the term field effect transistor. So let's look at what we have written in the slide number 11. MOS stands for the physical, these are the abbreviations for the physical structure of the transistor: metal, oxide, सेमीकंडक्टर. ये अब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने एक मेटल का इलेक्ट्रोड लिया है, उसके नीचे एक सेमीकंडक्टर की लेयर थी और सेमीकंडक्टर की लेयर हमने एन टाइप चैनल के ऊपर ग्रो की थी. तो इफ़ आई गो बैक अगेन टू सम ऑफ माय प्रीवियस स्लाइड्स, तो ये आप देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर जहाँ लिखा हुआ है, रीड इट एज N-type semiconductor, and later on this N-type semiconductor material would be referred to as N-channel for the flow of electrons. उसके ऊपर आपको N-channel N-type semiconductor के ऊपर मैंने एक ऑक्साइड लेयर ग्रो की हुई है. दिस ऑक्साइड लेयर इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, क्योंकि नीचे आपका सिलिकॉन मटेरियल है, सो इट विल बी अ सिलिकॉन डाइऑक्साइड layer which acts as an insulator. And then on top of the silicon dioxide layer I have created a metal contact which acts as a metal gate. तो इस schematic illustration को समझने के बाद अब हम अगली स्लाइड को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. So it's a physical structure. MOS stands for the physical description of the physical structure of the transistor: metal, oxide, semiconductor. The last three words in MOSFET stand for the device operation. तो ये देखिए कितनी logically मैंने in all the 6 letters को explain किया हुआ है. The first 3 letters MOS stand for the physical fabrication, physical structure of the device. That is, it is made up of semiconductor material, whether N-type or P-type, and then on top of that there is an oxide layer, and then on top of the oxide layer there is a metal contact, hence the term MOS. The last 3 words FET is the mechanism, is the principle of operation of the transistor, that is the device operation mechanism. और जैसे मैंने अभी कई दफ़ा इतनी डिटेल में बताया कि आप एक फील्ड क्रिएट करते हैं between the source and the gate, and then from gate to device. तो आपका एक continuous variation in voltage है by applying appropriate biases between the source to gate and then from gate to drain. तो source, gate, drain इन रिस्पेक्टिव तीनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपने पोटेंशियल कनेक्ट करके पॉजिटिव बायस लगा के हमने एक फील्ड क्रिएट किया है. आई हैव यूज्ड द टर्म पॉजिटिव बायस लगा के, क्योंकि हम एन चैनल की मिसाल ले रहे हैं, तो हमें फिर एक पॉजिटिव बायस लगा के एन चैनल क्रिएट करनी है, एक फील्ड क्रिएट करना है फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो FET stands for the mechanism which is used for the flow of current, that is movement of the electrons in our N-type semiconductor material. The current control mechanism is based on an electric field established by the voltage applied to the control terminal gate. Now gate plays a very significant role in the operation of the MOSFET devices, because it is the gate, with respect to the gate, that we choose the voltage for our drain, the magnitude of the voltage for our drain. I can go back again to this slide where you can see it very clearly, or this slide. ये आप देखिए कि अगर हम गेट टर्मिनल को एक वोल्टेज लगाएं, पॉजिटिव वोल्टेज लगाएं, उससे नीचे जो हमारी लेयर है सेमीकंडक्टर मटेरियल की, दैट आई हैव चोजन टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल. अगर मैं सोर्स को ग्राउंड रखूं और गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज दूं, तो दे वुड बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन द सोर्स एंड द गेट. और फिर इन टर्न अगर मैं कीपिंग द गेट वोल्टेज कांस्टेंट, अब एक मैं ड्रेन को वोल्टेज लगा दूं, तो फिर आपके
सोर्स टू गेट एंड देन गेट टू ड्रेन, यानी सोर्स टू ड्रेन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपके क्रिएट हो रहा है along the length of the entire transistor, and these two voltages, that is the gate voltage and the drain voltages, they control the amount of the number density of the electrons that flow from source to, that move from source to drain under the influence of this applied electric field, and hence the current would flow, चूँकि ये एक n channel material है, the current would flow in the opposite direction, that is from ड्रेन टू सोर्स। तो उस मुनासबत से तो अब आप दोबारा इस स्लाइड को अच्छी तरह देख लीजिए कि हमने गेट पे एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाई है, सोर्स को हमने ग्राउंड रखा है। सो दिस voltage would be called as gate to source voltage, positive gate to source voltage, and then later on we would apply, in order to understand the complete mechanism of current flow operation, we would also apply a second voltage to the drain, and that voltage would have a magnitude depending upon the would have some magnitude जिसको आप control कर सकते हैं in terms of the gate voltage as well. तो इस स्लाइड की स्ट्रक्चर देखने के बाद, बायसेस देखने के बाद अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए, तो the current is controlled, the current control mechanism is based on an electric field established by the voltage applied to the control terminal gate. तो इसमें एक्चुअली गेट को जो आप वोल्टेज लगा रहे हैं, that plays a crucial role in the amount of current that you get, that is the number of electrons flowing from source to drain, and in turn the electron current moving from drain to source. That is controlled by gate, hence is called a voltage controlled current device. तो ये तो एक description थी, logical description थी for the word MOSFET, that how they are made, what is their fabrication and what is their device operation. और ये चीज़ मैं आपको बहुत शुरू में बता चुकी हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, 3 फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आज मैंने लिस्ट किए हैं। सारे फील्ड, तमाम फील्ड, in all the field effect transistors, only one type of carrier participate in the flow of current, and hence these field effect transistor devices are known as unipolar devices, in contrast to the bipolar junction transistors, where both electrons as well as holes participate in the mechanism of current flow. तो ये एक simple definition थी for the name of these semiconductor devices, MOSFET, field effect transistors. Then I will devote 1 or 2 slides to the introduction of today's topic, that silicon is the main choice of semiconductors used in the fabrication of field effect transistors. Some other more common semiconductors such as gallium arsenide are not that popular, simply because they do not form good gate oxide layer. तो आज के लेक्चर का थ्रस्ट सो फार आपने ये समझा कि हमने एक ऑक्साइड लेयर डिपॉजिट करनी है ऑन टॉप ऑफ योर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो उसके लिए जाहिर है एन टाइप मटेरियल जो हम चूज़ करेंगे वो सिलिकॉन मटेरियल इज़ द मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर रादर देन गैलियम आर्सेनाइड। उसकी वजह ये है कि गैलियम आर्सेनाइड में ऑक्साइड लेयर इतनी अच्छी नहीं क्रिएट होती। एंड इन ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि इन मोस्ट मॉडर्न MOSFETs द गेट मटेरियल इज़ हेविली डोप्ड polycrystalline silicon, sometimes referred to as polysilicon or simply polysilicon. Note that the gate is usually doped the same type as the source and drain, that is the gate and the substrate are of opposite type, क्योंकि आपको एक चैनल क्रिएट करनी है, तो उस चैनल को जिसकी तरफ मैं अभी डिटेल में आऊँगी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो हमने ये कहा कि गेट इज़ द सेम टाइप एज द सोर्स एंड ड्रेन, यानी अगर आप हॉरिजॉन्टली हम देखें तो सोर्स गेट एंड ड्रेन आर द सेम मटेरियल, क्योंकि वो एक ही लेयर हमने सबस्ट्रेट एक सबस्ट्रेट के ऊपर सेम हमने लेयर ग्रो की थी, उसमें सिर्फ हमने इलेक्ट्रोड डिफरेंट किए थे। इफ़ आई गो बैक अगेन टू वन ऑफ माई प्रीवियस स्लाइड्स, तो फिर आपको जो मिडल में पॉइंट लिखा है उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह समझ आ जाएगी।
here is the slide we can show. ये देखिए, ये आपको लेफ्ट के पे देखें, आपको पी टाइप, अब मैंने चूँकि आज के लेक्चर में मैंने एन चैनल एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल से मॉसफेट फैब्रिकेट किया है, तो जो सबस्ट्रेट है ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, और उसके ऊपर जो मैंने चैनल लिखा हुआ है दैट इज़ एन टाइप चैनल, एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल। एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल जो आपको बहुत कम जिसकी थिकनेस नज़र आ रही है हैज़ बीन ग्रोन ऑन अ पी टाइप सबस्ट्रेट। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम वी हैव अ पी टाइप सबस्ट्रेट, उसके ऊपर एक एन टाइप चैनल मटेरियल है या एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है जिसको मैंने इस ट्रांसपेरेंसी में चैनल लिखा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि सोर्स और गेट और ड्रेन जो हैं ये तीनों सेम एन टाइप सेमीकंडक्टर में कॉन्टेक्ट्स लगाए हुए हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि आपने गेट और एन टाइप सिलिकॉन के बीच में एक ऑक्साइड लेयर ग्रो की है। इन अदर वर्ड्स आपको गेट के नीचे एक ऑक्साइड लेयर नज़र आ रही है, लेकिन अदरवाइज सोर्स एंड द गेट एंड द ड्रेन ये तीनों एक ही मटेरियल में ये इलेक्ट्रोड्स हमने कनेक्ट किए हुए हैं। सिर्फ गेट इलेक्ट्रोड कनेक्ट करने से पहले, डिपॉजिट करने से पहले हमने एक ऑक्साइड लेयर एडिशनल क्रिएट कर ली है, डिपॉजिट कर ली है बीनीथ द गेट इलेक्ट्रोड। तो ये एक डिफरेंस था इस कंस्ट्रक्शन में जो मैंने दोबारा इस फैब्रिकेशन में जो दोबारा मैंने हाईलाइट किया है। नाउ इफ़ वी गो बैक टू आ स्लाइड दैट वी वर डिस्कसिंग, तो फिर आपको इस पॉइंट का अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये मैंने क्या लिखा है, इन मोस्ट मॉडर्न मटेरियल्स द गेट मटेरियल दैट वी यूटिलाइज इज नॉट नॉर्मली मेटल, जैसा कि वर्ड MOS इम्प्लाई कर रहा है, बल्कि हम पॉली क्रिस्टलाइन मटेरियल सिलिकॉन का इस्तेमाल कर लेते हैं। The important point is note that the gate is usually doped the same type as the source and drain, that is the gate and the substrate are of opposite type. तो गेट और सबस्ट्रेट जो हमने नीचे लिए थे, सबस्ट्रेट हमने आज के लेक्चर में पी मटेरियल चूज़ किया हुआ है, तो गेट इज़ देयरफॉर एन मटेरियल, और सोर्स का भी एन मटेरियल है और ड्रेन भी हमारा एन मटेरियल है। तो इस मुनासबत से द पूरी लेंथ ऑफ द डिवाइस इज कॉन्स्टिट्यूट्स एन चैनल या एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक इलेक्ट्रॉन चैनल क्रिएट होती है फ्रॉम सोर्स टू गेट टू ड्रेन। Another name for the MOSFET is the insulated gate FET और IGFET। ये टर्म अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी क्योंकि हमने गेट के बीनीथ, गेट के नीचे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर क्रिएट की हुई है, hence the word insulated gate। The physical structure जिसको हम इतनी डिटेल में अब तक डिस्कस कर चुके हैं of the n channel enhancement type is shown in slide 16। अब enhancement का लफ्ज़ for the first time मेरे लेक्चर में आया है, जिसको मैं आगे चल के क्लियर करूँगी। Let me move on to slide 16 first so that we can see it has to be slide 14. Now this is the physical structure of the metal oxide semiconductor field effect transistor, and जो कि आपने पहले भी देखा था, लेकिन इसको मैंने reproduce किया है in a rather colorful fashion। तो आप उसी तरह देख रहे हैं कि जो ब्लू है यहाँ पे ये मेरा पी टाइप सबस्ट्रेट है, और उसके ऊपर जो डार्क ग्रे है दैट इज़ माय एन टाइप सोर्स एंड एन टाइप ड्रेन, और फिर उसके बीच में ब्राउन इज़ द ऑक्साइड लेयर, एंड देन वी हैव अ मेटल गेट एंड द रिस्पेक्टिव लेंथ ऑफ द चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन। तो जो हमारी चैनल की लेंथ है वो फिजिकल डायमेंशन फिनिश डिवाइस की नहीं है, यानी डिवाइस की टोटल लेंथ कुछ और चीज़ है, चैनल लेंथ सिर्फ उतनी है जो ड्रेन और सोर्स एंड ड्रेन के बीच में जो आपका एक रीजन बन रहा है, दैट इज़ द चैनल लेंथ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल लेंथ ऑफ द डिवाइस इट्सेल्फ। इसी तरह मैंने आपको डिवाइस की विड्थ यानी चैनल विड्थ भी दिखाई है। तो जो हमारी इफेक्टिव
चैनल लेंथ एंड चैनल विड्थ हैं वो इस स्ट्रक्चर में ऑफ स्लाइड 14 आपको नज़र आ रही हैं. एंड देन आई हैड लेबल्ड the symbol B for the substrate and S for the source, G for the gate and D for the drain. Now there would be no current flowing. अब ये चीज़ मैं आगे चल के इलस्ट्रेट करूँगी और मैं फिर वापस इसी स्लाइड 14 पे आ जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे एक और आपको एडिशनल चीज़ नज़र आ रही है कि there is no gate करंट ज़ीरो. वो गेट करंट इसलिए ज़ीरो लिखी हुई है कि जब हम डिफरेंट बायसेस करेंगे देयर वुड बी नो करंट फ्लोइंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में एक ऑक्साइड लेयर आपने क्रिएट की हुई है और हम एक डिप्लीशन रीजन भी क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द सबस्ट्रेट पी एंड द गेट जी. इसको हम आगे चल के दोबारा इलेबोरेट करेंगे एंड आई शैल कम बैक टू दिस स्लाइड अगेन. दूसरी चीज़ आप देख रहे हैं दैट इज़ द सोर्स करंट एंड द ड्रेन करंट. अभी मैंने बताया कि जब आप एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं ड्रेन को विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, सो द फील्ड डायरेक्शन इज the potential, there is a variation in potential from source to gate and from gate to drain, and hence the electron move and the current flows. So the total current flowing from drain towards source is exactly equal. That is, since no current is going out or in of the gate terminal, therefore the drain current ID should be equal to the source current IS. एक और चीज़ आप देखिए कि यहाँ पर मैंने इलेबोरेट किया है द ड्रेन टर्मिनल D. तो अगर मैं ड्रेन टर्मिनल को एक पॉजिटिव वोल्टेज देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, तो आपकी फील्ड डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फ्रॉम पॉजिटिव पोलैरिटी टूवर्ड्स द ग्राउंड. तो फील्ड आपका ड्रेन टू सोर्स जा रहा है. इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन देयरफॉर वुड मूव ऑपोजिट टू द फील्ड, यानी फील्ड अगर ड्रेन से सोर्स की तरफ है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. और यही वजह है ये दो टर्मिनोलॉजी यूज़ करने की. सोर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम द सोर्स टू द ड्रेन, बट द इलेक्ट्रॉन करंट in conventional terms would be opposite to the motion of the electrons themselves. तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहे हैं इस पॉजिटिव फील्ड की वजह से, जो कि हमने अप्लाई किया ड्रेन पर, एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाई, तो जो फील्ड है वो ड्रेन से सोर्स की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. तो इलेक्ट्रॉन करंट ऑब्वियसली ऑपोजिट होगी फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. और वही इस सिंबल में मैंने दिखाया है कि ड्रेन करंट, the current that leaves the drain must reach the source, so ID is equal to IS when the gate current was 0. So then I can move back again and see where we were discussing this slide. The transistor is fabricated on a p-type substrate which is a single crystal, and two heavily doped n-type regions are created in the substrate indicated as the source N and the drain. Again n-type source and n-type drain. ये चीज़ मैं बहुत तफसील में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. This is the same slide that I had referred to. ये उसका एक और क्रॉस सेक्शनल व्यू है जहाँ मैंने आपको अप्रोप्रिएट डायमेंशंस भी दे दिए हैं. अभी हमने लेंथ और विड्थ की बात की थी. तो length is approximately, length is typically from 0.1 to 3 micron meter, and width is typically from 0.2 to 100 micron meter of the channel length and channel width that you can see in this slide. And the oxide layer is very very thin, which is of the order of 2 to 50 nanometer. तो ये टिपिकल डायमेंशंस हैं ऑक्साइड लेयर की, चैनल लेंथ की और चैनल विड्थ की, जो कि अगेन इस ट्रांसपेरेंसी में आपको दोबारा दिखा दी गई हैं. द सेम थिंग उसको मैंने रिप्रोड्यूस किया है, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ये भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल पी टाइप हो और उसके ऑन टॉप ऑफ द पी टाइप सबस्ट्रेट वी ग्रो एन एन टाइप सिलिकॉन मटेरियल, तो ये हमें देता है
एन चैनल सेमीकंडक्टर मटेरियल। इसके बरक्स अगर हम सबस्ट्रेट एन टाइप मटेरियल ले लें और उसके ऊपर हम पी मटेरियल ग्रो करें यानी पी चैनल बनाएं तो दैट विल बी टर्म्ड एज पी चैनल मटेरियल। So in an N-channel MOSFET, the channel is made up of N-type, that is mobile electrons take part in the flow of current. So the charges free to move along the channel are negatively charged, that is the electrons move in an N-channel field effect transistor. इसके बरक्स अगर free charges which move from N to N are positively charged holes, then it is termed as the P-channel device, and accordingly the semiconductor is known as P-channel MOSFET. Both N-channel and P-channel operate in a complementary manner. ये बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एंड ऑफ दिस लेक्चर में एक आपको स्लाइड दिखाऊंगी जहाँ एक ही सबस्ट्रेट पे हम दोनों N channel as well as P channel MOSFET simultaneously grow करते हैं, fabricate करते हैं, and hence both N channel and P channel act in a complementary fashion, and hence the name CMOS, that is complementary metal oxide semiconductor transistors, in which we have on the same common substrate two semiconductors, two MOS field effect transistors, one the N type and second the P type. और बिल्कुल एंड में आपको मैं ये एक स्लाइड दिखाऊंगी complementary CMOS transistor की. Having discussed the fabrication of the MOSFET in such a detail, now we would move on to its to the mechanism of the current flow, that is the operation of the device itself. फिर मैं रिप्रोड्यूस करती हूँ वही एक दफ़ा two-dimensional view of the MOSFET, which in my lecture, as I mentioned again, is an N channel, that is electron आपके move करेंगे under the influence of the field that has been created between drain and the source. सर्किट सिंबल अगेन आपको नज़र आ रहा है. अब मैंने एक डिफरेंट फैशन में आपको दिखाया है सर्किट सिंबल कि आप देखिए सोर्स इज़ ऑन द फार लेफ्ट एंड ड्रेन इज़ ऑन द राइट, एंड इन द मिडल आपको गेट इलेक्ट्रोड नज़र आ रहा है. और वही टर्मिनोलॉजी मैं बताऊं आपको, फिर से एक्सप्लेन करूं कि ये मैंने दो पैरेलल लाइंस दिखाई हैं गेट के नीचे, एंड दोज टू पैरेलल लाइन इंडिकेट्स द सेपरेशन, द इंसुलेशन लेयर बिटवीन द गेट विच इज़ टॉप एंड द bottom which is the N channel source and drain, और ऑक्साइड लेयर इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में, और ऑल्सो पैरेलल प्लेट का आइडिया आपको एक कैपेसिटर का आइडिया भी दे रहा है. तो इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो अब तक हमने कंक्लूड किया वो क्या था कि जो आपकी गेट वोल्टेज है, यानी द वोल्टेज बिटवीन द सोर्स एंड द गेट, actually it is this voltage that controls the flow of current in the channel जो आपने ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज लगा के क्रिएट की. The current flowing through the channel between source and drain is controlled by the gate voltage. ये most important principle of operation है of the field effect transistor का. अब मैं तफसील में थोड़ा सा जाऊंगी ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन की, एंड द अमाउंट ऑफ करंट्स, दैट इज IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, द ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द ड्रेन वोल्टेज. और ड्रेन वोल्टेज को हम VDS, दैट इज ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जैसे मैंने पहले कई बार बताया. तो IV कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम तीन मुख्तलिफ गेट वोल्टेजेस को चूज़ करेंगे. सबसे पहले वी विल गो इन दिस फैशन लॉजिकली कि सबसे पहले हम गेट वोल्टेज लगाएंगे विदाउट एनी वोल्टेज गिवन टू द ड्रेन. यानी मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि the only voltage that I have applied to the device is the gate voltage. Let me show you this slide, तो फिर हम आगे चल सकते हैं. ये देखिए, यहाँ अगर मैं सबसे पहले सिर्फ एक गेट टू सोर्स वोल्टेज अप्लाई करती हूँ, पॉजिटिव वोल्टेज गेट को मैं अप्लाई करती हूँ. सोर्स और ड्रेन जो कि आपको इस स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन में ट्रांजिस्टर की नज़र आ रहे हैं, सोर्स S और ड्रेन D को दोनों को मैंने ज़ीरो वोल्टेज दी हुई है. इन अदर वर्ड्स दोनों को मैंने ग्राउंड किया हुआ है. सिर्फ
इनिशियल स्टेज में मैं गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूँ. सो लेट्स मूव ऑन सिस्टमेटिकली, लॉजिकली. स्टेप 1 कि आप गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं एंड दैट वोल्टेज इज टर्म्ड एज VGS, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू सोर्स एक वोल्टेज हमने अप्लाई की. ड्रेन और सोर्स को हमने अभी ग्राउंड किया हुआ है. देन इन द सेकेंड स्टेप बोथ VGS एंड यानी VGS तो हमने अप्लाई ही की हुई है और मैंने लिखा हुआ है, एम्फेसाइज किया है, पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है. और VDS भी अब ऑन टॉप ऑफ VGS हमने ड्रेन को भी वोल्टेज अप्लाई कर दी. तो इन 2 स्टेप्स में ये ट्रांसपेरेंसी मैंने अलग से बनाई है क्या आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं 2 सीक्वेंस, इस तरह 2 सीक्वेंस में चलूँगी कि सबसे पहले मैं सिर्फ गेट को एक वोल्टेज अप्लाई करूँगी, ड्रेन और सोर्स को ग्राउंड करूँगी. सेकेंड स्टेज में मैं GS को तो रहने दूंगी जो हमने अप्लाई की थी और ड्रेन को भी एक वोल्टेज अप्लाई करूंगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रेन वोल्टेज वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द गेट वोल्टेज. तो फिर हम वापस चले जाते हैं और इस चीज को दोबारा समझ लेते हैं. टू अंडरस्टैंड द 3 different modes of operation for an N-channel metal oxide semiconductor transistor, we consider 3 different gate bias voltages. Number 1, below the flat band voltage. इसका क्या मतलब है कि जब आपकी गेट वोल्टेज नेगेटिव हो, क्योंकि अभी मैंने आपको जो ट्रांसपेरेंसी जो स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने कहा था कि N चैनल ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए यानी करंट फ्लो कराने के लिए मुझे गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देनी है. बट लेट्स अस्यूम कि हम गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज नहीं दे रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं, जिसको मैं कहती हूँ बिलो द फ्लैट बैंड वोल्टेज VFB. देन आई अप्लाई अ पॉजिटिव वोल्टेज टू द गेट, और ये कितनी, थ्रेशोल्ड के बराबर कि जस्ट अबाउट आपकी एक डिप्लीशन लेयर जनरेट हो जाए. एंड आई शैल एक्सप्लेन कि डिप्लीशन लेयर कैसे जनरेट होती है. इस स्लाइड नंबर 20 में मैंने फ़िलहाल सिर्फ आपको ये इलस्ट्रेट करने की कोशिश की है कि कौन सी 3 डिफरेंट गेट वोल्टेजेस हैं जो हम चूज़ करते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल डिस्कस इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो. तो नंबर 1 इज़ a voltage that is applied to the gate, which is a negative voltage termed as the flat band voltage applied to the gate. Then we apply a certain positive voltage to the gate, some threshold VT, and then larger than the threshold voltage. तो ये 3 voltages आ गई, VG negative, VG some positive value, and then VG greater than the threshold value. और ये तीनों values जो हैं ये हम discuss करेंगे when we have not applied any voltage to the drain. So these 3 different biases given to these 3 different voltages applied to the gate are called the accumulation and the depletion mode of operation. Accumulation होगी उस वक्त जब हमारी गेट वोल्टेज कोई स्लाइट, कोई स्मॉल गेट पॉजिटिव वोल्टेज हमने गेट को दी हुई है. डिप्लीशन कब होगी, जब हमारी गेट वोल्टेज एक सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बढ़ जाए. तो ये तीनों फ्लैट बैंड में ऑब्वियसली कोई करंट फ्लो नहीं कर रही होगी. तो इस द नंबर 2 एंड नंबर 3 द वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज 2 and the 3 that will constitute the accumulation of the charges and the depletion mode of operation. The applied positive voltage to the gate controls the current flow between source and drain. ये हम पहले भी बता चुके हैं. This current will flow in the longitudinal direction from drain to source in the N-channel region. This second point I had elaborated in great detail. आप दोबारा समझ लीजिए कि हमने ड्रेन को पॉजिटिव वोल्टेज दी है with respect to the source. So the direction of the field due to this applied voltage would be from positive drain to the grounded source. Electrons would move
opposite to this field direction, that is electrons would move from source to drain, hence the electron current would flow from drain to source. इन तीनों चीज़ों को मैंने, तीनों डिफरेंट जो मैंने लाइंस बोली, इनको मैंने सम अप किया है, that the electron current in response to the applied voltages will flow in the longitudinal direction from drain to source in the n channel region. The note that this region has a length L and a width W. Typically length is of the order of 1 to 3 micron and width is about 2 micron to 100 micron, and this I had already shown in one of the slides. There is a last point that I would like to mention, that शुरू में हमने कहा कि सोर्स, गेट और ड्रेन ये तीनों एक ही मटेरियल में हमने इलेक्ट्रोड, ये तीनों इलेक्ट्रोड्स हमने एक ही सेमीकंडक्टर लेयर में फैब्रिकेट किए हुए हैं, विच इज़ इन एन चैनल इन आवर केस, या एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इन आवर लेक्चर. तो चाहे सोर्स को हम ड्रेन से रिप्लेस कर दें और ड्रेन को सोर्स से रिप्लेस कर दें, इट वुड नॉट ऑल्टर, इट वुड नॉट अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ आवर डिवाइस, क्योंकि ये सोर्स एंड ड्रेन दोनों सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोड्स हैं. तो इसीलिए पॉइंट 4 में मैं लिख रही हूँ कि MOSFET इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस, thus its source and drain can be interchanged with no change in the device characteristic. अब मैं आपको वो चीज़ समझाने लगी हूँ कि कैसे हमारी करंट फ्लो होती है. तो सबसे पहले, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम सबसे पहले चलते हैं कि अभी हमने गेट और सोर्स को, हमने गेट को एक स्लाइट वोल्टेज अप्लाई की है जो कि पॉजिटिव है. सो लेट मी एक्सप्लेन कि ये इससे क्या मेरी मुराद है, कि कैसे हम इस वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये देखिए कि अब मैंने एक पॉजिटिव वोल्टेज जी ग्रेटर देन 0 दी है. तो जैसे ही मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाती हूँ, फर्स्ट पॉइंट कि अगर मैं कोई पॉजिटिव वोल्टेज गेट को लगाती हूँ, तो देखिए आप इधर से देखिए कि ये हमारी पी टाइप सिलिकॉन की लेयर है. तो इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नीचे पुश डाउन होंगे. आप देख रहे हैं गौर से इस स्लाइड को कि जब मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज गेट को जैसे मैंने दी, ये मैंने लिखा कि मैंने एक पॉजिटिव वोल्टेज, ये लिखा है पॉजिटिव वोल्टेज यानी ग्रेटर देन 0 वोल्टेज जब हम गेट को अप्लाई करते हैं. तो इधर आइए, ये देखिए, तो गेट के नीचे ऑक्साइड लेयर है. तो ये एक पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से हमारे जो होल्स हैं सिलिकॉन सबस्ट्रेट में वो नीचे पुश डाउन हो जाएंगे. जैसे जैसे हम गेट की वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं गेट की, यानी एक है अगर फ़र्ज़ करें मैंने गेट वोल्टेज Vg लेस देन ली थी, जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करूं तो जाहिर है कुछ भी नहीं आपके होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नो कैरियर्स वुड बी मूविंग. लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज लेती हूं, स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज लेती हूं, तो फिर इस सूरत में इट इज़ द सेकेंड ऑपरेशन विच बिकम्स इम्पॉर्टेंट, कि जब मैं एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करती हूँ गेट को, तो आप देख रहे हैं इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से हमारे होल्स जो हैं पी सबस्ट्रेट में वो नीचे पुश डाउन होंगे. और साथ में ये भी होगा, यानी 2 प्रॉन्ग इफेक्ट हो रहे हैं इस पॉजिटिव वोल्टेज के, कि होल्स पी सबस्ट्रेट में आपके नीचे पुश डाउन हो रहे हैं, गेट पॉजिटिव वोल्टेज होल्स को नीचे पुश डाउन कर रही है, और साथ में एन सोर्स और ड्रेन, एन टाइप ड्रेन और एन टाइप सोर्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टॉप लेयर पे अट्रैक्ट हो रहे हैं. तो इस गेट लेयर के, पॉजिटिव गेट के नीचे एक इलेक्ट्रॉन लेयर अक्यूमुलेट हो जाएगी. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं? एन टाइप सोर्स से और एन टाइप ड्रेन से अट्रैक्ट होके आ रहे हैं पॉजिटिव गेट वोल्टेज की वजह से. और शुरू में क्या हुआ था कि होल्स नीचे पुश डाउन हो गए थे, होल्स पहले नीचे पुश डाउन हुए, इलेक्ट्रॉन्स बाद में, जैसे जैसे गेट वोल्टेज हम और बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे आपकी गेट वोल्टेज और पॉजिटिव होती जा रही है, जैसे जैसे ये बढ़ रही है, पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ रही है. तो पहले लेट मी रिपीट फॉर द एनथ टाइम, जब नेगेटिव गेट वोल्टेज हो तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही. जब कोई आप स्मॉल गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं
तो पहले इंस्टेंट में होल्स, पी टाइप होल्स इन द पी टाइप सिलिकॉन आपके नीचे पुश डाउन हो रहे हैं। जब आप और ज़्यादा मज़ीद पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लेयर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन सोर्स और ड्रेन दोनों एन टाइप हैं, वहाँ से आके जमा होने शुरू हो गए। तो आपको बहुत अच्छी तरह आप समझ आ गया कि पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से हमारे होल्स नीचे पुश डाउन हो गए, इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्यूमुलेट हो गए। इस मुनासबत से ये टर्म हमने यूज़ की थी, दी एक्यूमुलेशन लेयर। अब मैं इसको दोबारा पीछे जाके वापस रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है कि दीज बायस रेजिम्स आर कॉल्ड एक्यूमुलेशन। नाउ एक्यूमुलेशन रिफर्स टू, ये देखिए, एक्यूमुलेशन रिफर्स टू नंबर 2 जो मैंने बायस मोड दिखाई है कि अगर आप कोई थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT स्लाइटली पॉजिटिव लेते हैं। अब फ्लैट बैंड मोड और थ्रेशोल्ड वोल्टेज में ये फ़र्क है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से एक, जैसे मैंने अभी अगली स्लाइड में आपको बताया था, एक लेयर चार्जेस की एक्यूमुलेट होना शुरू हो गई। गेट से इमीडिएटली नीचे हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेयर हुई थी एक्यूमुलेट और उससे नीचे होल्स आपके पुश डाउन हो गए। हमारे होल्स पुश डाउन हुए थे तो एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन लेयर जो कि होल्स की वजह से होती है वो भी अनकवर हो गए थे। तो ये रीजन हमारा कहलाया एक्यूमुलेशन रीजन। और अभी मैं आपके डिप्लीशन लेयर रीजन की भी आपको वजाहत करती हूँ। अब सेकेंड इंस्टेंट में हमने क्या किया है? सेकेंड इंस्टेंट में हमने ये किया कि हमने बोथ VGS एंड अब आपने ड्रेन को भी विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स भी एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो इस सूरत में क्या होगा, ये देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि गेट को वोल्टेज देने की वजह से, गेट को वोल्टेज देने की वजह से हमारे पास गेट वोल्टेज, जब हम एक पॉजिटिव गेट वोल्टेज देते हैं तो हमारे पास होल्स नीचे रिपेल हुए थे और उनकी होल्स के एक क्या क्रिएट होल्स ने एक एक्सेप्टर आयन की लेयर को अनकवर कर दिया था, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर्स को अनकवर कर दिया था और बाद में फिर आपके इलेक्ट्रॉन भी आना शुरू हो गए। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जब ये शुरू में आपके गेट के नीचे P टाइप लेयर थी, लेकिन जब होल्स नीचे पुश डाउन हो गए तो उन्होंने अपने नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, आपको मालूम है हर P टाइप मटेरियल में नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस भी मौजूद होते हैं और हर N टाइप मटेरियल में पॉजिटिव डोनर आयंस भी मौजूद होते हैं। तो जब ये होल्स पुश डाउन हुए इस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से, तो N गेट के इमीडिएट नीचे आपके एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर एक्यूमुलेट हो गई थी। अब जब हम पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं VDS को और साथ में जैसे जैसे हम गेट वोल्टेज, मैंने आपको बताया था 2-3 मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, व्हेन यू अप्लाई सम स्मॉल पॉजिटिव वोल्टेज द होल्स विल बी पुश्ड डाउन, अ नेगेटिव एक्सेप्टर आयन लेयर क्रिएट हो रही है गेट के नीचे। मज़ीद वोल्टेज गेट की बढ़ाने से आपके इलेक्ट्रॉन भी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं N टाइप सोर्स और N टाइप ड्रेन से। अब हम सेकंड थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन की तरफ आते हैं। ये देखिए, व्हेन वी कम टू द थर्ड स्टेप व्हिच इज बोथ VGS इज देयर एंड VDS इज देयर। तो VDS के लगाने से जब आप ये लगाते हैं, एक VDS पॉजिटिव लगाते हैं, ये पॉजिटिव VDS लगाने से ये होगा, अब आपके एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया बिटवीन द ड्रेन एंड द सोर्स। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है बिटवीन। ये देखिए, अब तक अब जो इलेक्ट्रिक सिर्फ VG के लगाने से, ओनली यूजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ वी अप्लाई ओनली द गेट वोल्टेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो वर्टिकली क्रिएट हो रहा है। यानी एक आपने पॉजिटिव वोल्टेज गेट को दी,
उन्होंने होल्स को रिपेल किया, होल्स पीछे एक नेगेटिव लेयर छोड़ गए एक्सेप्टर आयन की. सो यू हैव अ वर्टिकल charge layer, the positive gate voltage and the negative charges of the acceptor ions. तो ये एक vertical layer create हो रही है. कोई n type semiconductor material के electrons vertical layer में move नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने कहा था जब Vg slightly positive हो तो हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. जब आप नंबर 2 पे गए थे, गेट वोल्टेज को आपने और मज़ीद बढ़ा दिया तो ये लेयर और ज़्यादा वाइडन हो गई, यानी और ज़्यादा मज़ीद होल्स पुश डाउन हो गए और एक और एक्यूमुलेट हो गई लेयर एक्सेप्टर आयन की. तो इस रीजन को हमने कहा था एक्यूमुलेशन लेयर. सेकेंड स्टेज में हमने कहा कि अब यानी सो फार सिर्फ गेट वोल्टेज अप्लाई करने से आपको करंट फ्लो नहीं मिल रहा from source to drain, from drain to source. अब जब हम ड्रेन को भी एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, तो जैसे मैंने पूरे लेक्चर में कई बार एक्सप्लेन किया कि ड्रेन से सोर्स की तरफ एक पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हुआ, सोर्स से ड्रेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, ड्रेन से सोर्स की तरफ इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो की. तो करंट फ्लो के लिए लिहाजा ज़रूरी है कि आप एक स्मॉल वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वोल्टेज ड्रेन को भी दें, और साथ में एक गेट की वोल्टेज तो पहले ही मौजूद है, अब आप साथ में गेट वोल्टेज के साथ साथ ड्रेन को वोल्टेज देना ज़रूरी है. और ये दोनों वोल्टेजेस फिर मिलके द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रेन वोल्टेज माइनस द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट वोल्टेज देयरफॉर गिव्स राइज टू एन इंटरेस्टिंग mechanism, which is the ID characteristic of the MOSFET field effect transistor that we shall discuss in detail in my next lecture. तो आज के लिए मैं ये बताऊं कि हमारे ये रीजन ज़रूरी है डिफाइन करना कि हम गेट वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं below 0, that is some negative gate voltage, and then some positive gate voltage up to a value known as threshold voltage, जिस पे कि just about आपके accumulation region शुरू हो जाता है, and then larger than the threshold voltage. तो when gate voltage is greater than the threshold voltage, इसको हम accumulation रीजन कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. और फिर जब और ज़्यादा हो जाए तो फिर हम उसको डिप्लीशन रीजन कहते हैं. ये तीनों चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. और अब हम आगे चलते हैं कि ऑपरेशन विद नो गेट वोल्टेज, उसको मैं स्लाइटली थोड़ी सी और वजाहत करना चाहूँगी. देखिए, तीनों वोल्टेजेस हमारी ज़ीरो हैं. ना हमने कोई गेट को वोल्टेज दी, सोर्स को तो हम थ्रू आउट ग्राउंड रखते हैं क्योंकि हमने गेट और सोर्स की वोल्टेजेस को विद रिस्पेक्ट टू सोर्स डिफाइन करना है. सो सोर्स इज ग्राउंडेड, देयर इज नो वोल्टेज एट द गेट, देयर इज नो वोल्टेज एट द ड्रेन. तो गेट एंड ड्रेन तीनों टर्मिनल्स हमारे ग्राउंडेड हैं. विद नो वोल्टेज अप्लाइड टू द गेट, two back-to-back diodes exist in series with drain and source. तो आपके source and gate to drain, two back-to-back diodes series में लगे हुए हैं. No current flows even if VDS is applied. These back-to-back diodes prevent current conduction from drain to source. ये चीज़ मैं अभी explain कर चुकी हूँ कि अगर आपके ड्रेन पे कोई गेट पे कोई वोल्टेज नहीं है और आप ड्रेन को दे भी दें वोल्टेज, तो चूंकि बीच में गेट और सोर्स दोनों ग्राउंडेड हैं तो हमारे पास फिर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. सो करंट फ्लो के लिए ये ज़रूरी है कि हम गेट को कोई स्लाइटली पॉजिटिव वैल्यू दें ताकि आपके सोर्स विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हमारा फील्ड इस्टेब्लिश हो रहा है. In fact, the path between drain and source has a very high resistance of the order of 10 to the power 12 ohm. तो first step क्या है? There is no voltage anywhere on all the three electrodes, hence there would be no current flow. There is no mechanism to generate the current. और वो mechanism क्या है? You have to create a field in the
in the material which is called channel. चूँकि हमने material n-type semiconductor लिया है, so it will be termed as n-channel. There is no potential applied to any of the, there is no bias applied to any of the electrodes. इस slide में 23 में यही emphasize किया गया है that there is no bias applied to any of the 3 electrodes, hence there is no field, hence there is no motion of the electrons, and hence there is no flow of current. Thus I write that the drain to source resistance is very high and there is no conduction of the charge carriers. Now we apply some gate voltage. और जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब हम गेट वोल्टेज, थोड़ी सी पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ड्रेन विद रिस्पेक्ट टू सोर्स हमारा अभी भी 0 है, दैट इज़ इट इज़ ग्राउंडेड. तो ये मैं आपको स्लाइड 27 में एक्सप्लेन करती हूँ, जो मैंने शुरू में आपको बताया एक्सक्यूज मी, कि ये किस तरह हमारे एन चैनल क्रिएट हो रहे. सो लेट मी गो बैक टू दिस स्लाइड. अब ये आप देखिए कि हमने, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत क्लियरली, सोर्स और ड्रेन दोनों हमारे ग्राउंडेड हैं, सिर्फ हमने गेट को एक पॉजिटिव वोल्टेज दी है. और जैसे मैंने अभी काफ़ी तफसील में एक्सप्लेन किया कि इससे हो क्या रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज पी टाइप होल्स को जो कि हमारे सबस्ट्रेट में मौजूद हैं वो पुश डाउन कर रहे हैं और ड्रेन और सोर्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट हो रहे हैं इस पॉजिटिव गेट वोल्टेज की तरफ से. तो हमारी ये एक एन चैनल क्रिएट हो रही है. इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. एन इन्हांसमेंट का लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया है कि जैसे जैसे हम गेट की वोल्टेज को, पॉजिटिव गेट वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, मोर होल्स विल बी पुश डाउन, मोर एक्सेप्टर आयन लेयर्स वुड बी अनकवर्ड. तो इसलिए आपकी इन्हांसमेंट हो रही है चैनल की. The enhancement type N MOSFET transistor, this figure illustrates the enhancement type N channel metal oxide semiconductor field effect transistor. A positive voltage applied to the gate and N channel is induced at the top of the substrate beneath the gate. N channel is induced due to the uncovering of the negative acceptor ion, जैसा मैंने अभी बताया, क्योंकि holes पॉजिटिव गेट वोल्टेज की वजह से नीचे पुश डाउन हो गए थे. तो दिस 27th स्लाइड illustrates the mechanism for the creation of the N channel, induced N channel. इंड्यूस क्यों? क्योंकि आपने गेट को वोल्टेज दी, जिन्होंने होल्स को पुश डाउन किया, एक्सेप्टर की नेगेटिव लेयर अनकवर हो गई होल्स के नीचे मूव डाउन होने की वजह से. जैसे जैसे गेट की वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज आप इंक्रीज करेंगे, ये एन चैनल, इंड्यूस्ड एन चैनल और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. हैंस द टर्म एनहांसमेंट टाइप, एनहांसमेंट एन चैनल या एनहांसमेंट टाइप एन चैनल. तो इसीलिए मैंने हेडिंग लिखी हुई, एन इंड्यूस्ड चैनल is generated, it's created by applying a sufficient positive voltage to the gate. यही चीज़ मैंने explain की है. A positive voltage is applied to the gate. We have grounded the source and the drain initially इसलिए कि आगे चल के मैंने ड्रेन को भी पॉजिटिव वोल्टेज देनी है. तो ये चीज़ मैंने आपको स्लाइड 20, एक और स्लाइड 26A में भी दिखाई है. ये देखिए ऊपर टॉप पे देखिए स्लाइड 26A कि गेट को मैंने पॉजिटिव वोल्टेज दी है. सबस्ट्रेट जो वाइट रीजन है दैट इज पी टाइप सबस्ट्रेट. द पर्पल एन टाइप सोर्स इज ऑन द एक्सट्रीम left side and on the right side is your drain. The drain or source, they are both grounded respectively. Only positive voltage is given to the gate. वो मैंने आपको right side पे भी दिखा दी है. तो ये sequence था. A sequence is illustrated in this slide. A positive voltage is applied to the gate. We have grounded the source and the drain. Since the source is grounded, the gate voltage
is labeled as voltage with respect to source, hence it is called VGS. उसके बाद क्या हो रहा है? First the holes are repelled by the positive voltage applied to the gate, leaving behind the negative acceptor ions, forming a depletion region. ये देखिए, ये नंबर बी में आप देखें कि डिप्लीशन रीजन जहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये एक नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर है, क्योंकि होल्स जो कि मोबाइल कैरियर्स थे पी टाइप सबस्ट्रेट में, वो पॉजिटिव गेट वोल्टेज की से नीचे पुश हो गए. तो इस मुनासबत से हमने इसको कहा था द जनरेशन या क्रिएशन ऑफ अ डिप्लीशन रीजन by applying a certain magnitude of positive gate voltage. The positive gate voltage also attracts electrons from the N plus source and the drain regions, creating a channel and inversion layer. तो पहले हमारे गेट के नीचे पी टाइप सबस्ट्रेट मटेरियल था, अब वो होल्स नीचे चले गए हैं, आपके नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर क्रिएट हो गई. उस मुनासबत से हमने इसको डिप्लीशन रीजन कहा. लेकिन जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स सोर्स और ड्रेन से अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस मुनासबत से हमने इसको इन्वर्शन लेयर भी कहा. सो वी कैन लेबल इट एज इन्वर्शन लेयर और डिप्लीशन रीजन, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी टिपिकल पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डायोड में हम स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं और डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं. स्पेस चार्ज रीजन हम इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे इमोबाइल डोनर एंड एक्सेप्टर आयंस अनकवर हो जाते हैं ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर्स. और डिप्लीशन रीजन हम इस मुनासबत से कहते हैं कि वहाँ मोबाइल चार्जेस, द चार्ज कैरिंग मोबाइल carriers are absent, have been swept away due to the field in the depletion region. तो ये वही terminology हमने यहाँ use की हुई है. Due to electrons accumulated under the gate, an N region is in effect created and connects the source and drain regions as indicated in slide, which I will show in a minute. The N region forms a channel, N channel MOSFET. तो इस मुनासबत से चूँकि ये पॉजिटिव गेट वोल्टेज आपके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम ड्रेन एंड सोर्स, हेंस अ लेयर इज क्रिएटेड अंडर द गेट एंड दैट इज टर्म्ड एज द एन चैनल, फॉर्मेशन ऑफ द एन चैनल. ये अब आपको सी में नज़र आ रहा होगा कि आपके नेगेटिव आयंस की लेयर नीचे आ गई और गेट के इमीडिएट नीचे आपके नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की लेयर क्रिएट हो गई. सो लेट्स रिपीट द सीक्वेंस वंस अगेन. इन ए वी अप्लाई अ पॉजिटिव, आप देखिए इस स्कीमेटिक इलस्ट्रेशन में डायग्राम ए को देखिए. अ पॉजिटिव गेट वोल्टेज इज अप्लाइड टू द गेट टर्मिनल. उसकी वजह से क्या होता है, होल्स नीचे पुश डाउन हो गए, नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर क्रिएट हो गई. मैंने नेगेटिव एक्सेप्टर आयन की लेयर और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इस तरह डिफ्रेंशिएट किया है. द नेगेटिव साइन विद इन द सर्कल इंडिकेट्स द नेगेटिव एक्सेप्टर आयन, और उसके ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन की लेयर है वो सिर्फ नेगेटिव, वो सिर्फ